کہ سانس روک کے 11 بار پڑھ لیں، انشاءاللہ اس عمل کو آپ ضرور کریں گے، بے اولاد کو اولاد ملے گی، جادو ٹوٹ جائے گا، رزق وسیع ہو جائے گا۔ جو بندہ عصر کی نماز کے بعد سانس روک کے یا رحمان پڑھے گا، بس جس سانس میں جتنا پڑھ لیں، 7 9 11 بار پڑھ لیں تو اچھی بات ہے۔ سانس روک کے 11 بار یا رحمان پڑھے گا، اس کو 3 تحفے ملیں گے، بے اولاد کو اولاد ملے گی، جادو ٹوٹ جائے گا، رزق وسیع ہو جائے گا۔ عصر کی نماز کے بعد کہ سانس روک کے 11 بار یا رحمان پڑھ لیں، آنکھوں سے کرشمے دیکھیں، بندشیں، بیماریاں ختم، رزق وسیع، اور اللہ کے خزانہ غیب سے اس کو رحمت ملے گی، اور جادو جنات اثرات اور بے اولادیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو انشاءاللہ اس عمل کو آپ ضرور کریں گے، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اللہ ہمیں اس کا صلہ دنیا میں بھی عطا فرمائے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ آج کے اس دن میں اس میں کوئی تنہائی کا لمحہ اور ایسا تنہائی کا لمحہ ہو کہ جس کے بارے میں ہے کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے، یاد تیری دل نشیں ہوتے۔ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے، یاد تیری دل نشیں ہوتی۔ کوئی تنہائی کا لمحہ، بس اچھا چند منٹ چند لمحے ہوں، صرف یہ دیکھنا یہ ہے کہ اس میں صرف تصور کرنا ہے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ مجھے مسکرا رہا ہے، دیکھتے ہوئے مسکرا رہا ہے، اور اللہ میرا راضی ہے۔ جتنا بھی کوئی خطا کار کہتے ہیں اپنے آپ کو، گناہ گار کہتے ہیں اپنے آپ کو، سیاہ کار کہتے ہیں اپنے آپ کو، جتنا بھی خطا کار گناہ گار سیاہ کار ہے، جتنا بھی گناہ گار خطا کار سیاہ کار ہے، وہ صرف یہ دیکھے چند لمحوں میں، بس اس تصور میں بیٹھ جائے، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، کہ اللہ مجھے دیکھ کر اللہ مسکرا رہا ہے۔ اور فائدہ کیا ہوگا؟ وہ بھی بڑی عجیب بات ہے۔ فائدہ یہ ہوگا کہ حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی میں یہ ہے کہ اللہ پاک جل شانہ کہ کملی والے کا فرمان ہے، میرے بندوں میرے ساتھ جیسے گمان کرو گے میں ویسے معاملہ کروں گا۔ اے اللہ ہم نے تیری مسکراہٹ کا گمان کر دیا، اور تو یقیناً ہمیں مسکرا کے دیکھے گا، ہمیں جب مسکرا کے دیکھے تو ہمارے سارے کام بن جائیں گے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے، وہ وہاں سعودی عرب میں تھے، تو کہنے لگے میں وظیفے پڑھتا گیا اپنے کفیل کے پاس کہ میرا پاسپورٹ واپس کر دے گا، میں نے چھٹی پہ جانا ہے، میں کیا ہوگا کیسے ہوگا۔ تو اپنے دوستوں میں بیٹھا تھا، تو میں ایسے گیا نا، میں سلام کیا تو اس نے ایسے مجھے دیکھا، ایسے دیکھ کر مسکرا پڑا۔ میں نے کہا بس مسکرایا، میرا کام بن گیا۔ کہنے لگے کیسے آئے؟ میں نے کہا جی یہ کام ہے۔ اس نے اپنے جو ہے خادم کو بلایا، اس نے کہا جو یہ کہتا کر دے۔ کہا کہ اس کی جو مسکراہٹ تھی، اس مسکراہٹ نے مجھے امید دی کہ میرے کام بن گئے، میرے مسئلے حل ہو گئے، میری مشکلیں دور ہو گئی، اور میری ناکامیاں ختم ہو گئی۔ چند لمحے اپنے دفتر میں، اپنے کہیں جگہ کہاں بیٹھے ہیں، بس اس کیفیت کے ساتھ میرا اللہ مسکرا کے مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ مسکرا کے مجھے دیکھے گا، اس پہ جو اللہ کی رحمت اور نظر آئے گی، اس پہ جو اللہ کی عطا اور شفقت آئے گی، اور اس پہ اس کی شان کریمی آئے گی، ایک مسکراہٹ سے ساری کائنات کے گناہ دھول دے، ایک مسکراہٹ سے سارے سمندروں کو میٹھا کر دے شہد کی طرح، ایک مسکراہٹ سے ساری سختیوں کو نرم کر دے، ایک مسکراہٹ سے سانپ کے اندر کاٹنے کی کیفیت کو ختم کر دے، ایک مسکراہٹ سے خون خواروں کو محبت دے دے، اس کی ایک نظر اور ایک مسکراہٹ ساری کائنات کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ اس کے سامنے میرے مسائل کیا ہیں، میری مشکلیں کیا ہیں، میرے قرضے، میری بیماریاں، میرے جادو، میری جنات، میرے اثرات، میری بندشیں، میری الجھنیں، میرے گھر کی ناکامیاں، کاروبار کی ناکامیاں، اس شہنشاہ کی مسکراہٹ کے سامنے کیا ہیں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا شارٹلی تعارف تھوڑی سی چیزوں کا ہو جائے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں بڑی یونیک ہے، لاہور کے داتا کی نگری میں اتنا بڑا میوزیم، اور آپ کی محبت اس میں نظر آتی۔ جی یہ اپکری میوزیم ہے، میری اپکری بلڈنگ کے اوپر ایک ہال ہے، چھوٹا سا ہے، تو جگہ یہ چونکہ تھوڑی ہے، اس میں چمڑے کے برتن بھی ہیں، اس میں پیتل کے، تانبے کے، کانسی کے، ہر چیز کے اس میں، اور پرانی چیزیں بہت زیادہ، چھوٹی بڑی۔ اچھا، اونٹ کی
हड्डियों के हवाले से सामने हड्डियां देख रहा हूँ मैं, ये किन किन की हैं? खाली ऊँट की हड्डियां हैं या कोई और ये भी? सिर्फ ऊँट की हड्डियाँ हैं, और ऊँट की ये देखिए ना, ऊँट की खोपड़ियाँ पड़ी हैं। अच्छा, ये खोपड़ियाँ ऊँट की पूरी, ये खोपड़ी, ये खोपड़ी, ये खोपड़ी, ये 1 2 3 4 5 6 7 बहुत ज़्यादा वो पड़ी हैं खोपड़ियाँ। इसमें कोई हिकमत भी बयान? ऊँट की जो हड्डी है ये जादू का इलाज है, नज़र बद का इलाज है, और ऊँट की हड्डी से जादू जिन्नात नहीं होती है। ये मैं नहीं कहता, ये हमारी तारीख़ की किताबों में, रूहानियत की किताबों में ये बाकायदा बहुत ज़्यादा इसके हवाले भी हैं और इसकी तारीख़ भी है। अच्छा कि मतलब मैं म्यूजियम पे नज़र गई है, वहाँ पे मोटरसाइकिल खड़ी हुई है, कोई यामाहा की है, तो वो मैं चाह रहा हूँ ज़रा वो भी साथ साथ एक जो ना मुझे बड़ा यहाँ पर वो एक कोई वेस्पा है क्या? मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा उसकी कोई जो है तारीख़ आपसे पूछी जाए कि ये जो है ना। पुराने चीज़ें, चूँकि मुझे शौक़ है पुरानी चीज़ें जमा करने का, तो इसका दौर ही ख़त्म हो गया। तो जिन चीज़ों का दौर ख़त्म हो जाता है तो मेरी कोशिश होती है मैं उनको जमा करता रहूँ। ये कितना साल लगा आपको ये सारी चीज़ें जमा करने में, और ये इसको बनाने का ख्याल कैसे आया? मैं से अर्ज़ किया ना कि मेरा ये पुराना शोबा है, और पुराना मुझे ये चीज़ विरसे में भी मिली है, वालिदैन की तरफ से भी। मिट्टी के बर्तन भी माशाल्लाह देखने को मुझे नज़र आ रहे हैं, मिट्टी के बर्तन। चरखा जो है ये जो है वो मुझे नज़र आ रहा है कि इसे चरखा ही कहते हैं। जी हाँ, पुराना चरखा है। सूफी इसका सूफी इकराम बड़ा जिक्र करते ये हैं। पुराना हुक्का है। अच्छा, बहुत पुरानी, बहुत इससे भी पुरानी चीज़ें हैं जो हमारे पास ही हैं, क्योंकि जगह नहीं है। अब ये देखिए ऊँट की, ये ऊँट की खाल बालों का बना हुआ है। अच्छा, ये कालीन, जी कालीन जो दरी है, दरी। ये ऊँट के बालों की है। ये देखिए ना, ऊँट के बालों का कदीम कंबल, ये लिखा हुआ है, ऊँट के बालों का कदीम कंबल। ये असली चीते का की खाल है, असली चीता है, इसको महफूज किया हुआ है, स्टफ किया हुआ है। ये जो सामने बर्तन लगे हुए हैं जी, किबला, इसकी क्या? ये तारीख के पुराने वो बर्तन हैं जो हम इस्तेमाल करते थे। जब तांबा, कांसी, पीतल इस्तेमाल करते थे, बेऔलादियाँ नहीं थी, बीमारियाँ नहीं थी, बुढ़ापे नहीं थे, और चाल में लड़खड़ाहट नहीं थी, लाइलाज बीमारियाँ नहीं थी। जब ये बर्तन हमने इस्तेमाल करने छोड़ दिए तो हम बीमारियाँ, परेशानी में मुब्तला हो गए। एक तरफ मैं देख रहा हूँ कि यूनिक पुरानी चीज़ें जी, जो जिस तरह टेप रिकॉर्डर है, रेडियो है, फिर यहाँ पे टाइपराइटर है, ये एक ख़ास ही चीज़ें। और फिर शोहदा की तस्वीरें जो हैं, ये आपकी एक मोहब्बत पाक फौज से, शोहदा से। ज़रा मैं चाहता हूँ कि ये भी जो है ना लोगों को नज़र आए कि ये खाली रूहानियत के साथ साथ जो है, जिस तरह आपकी एक मोहब्बत है अपने मेरे वतन से, मुझे मोहब्बत है वतन के विरसे से, तो ये चीज़ें इसलिए मैंने संभाल के रखी। ये देखें ना, ये शोहदा की कैप है, ये उनकी पानी पीने की बोतल है, और ये उन्हीं का संदूकचा है पुराना। ये तस्वीरों के अंदर जो है, अगर हम इसको देखा जाए तो बड़े बड़े शोहदा में नज़र आ रहे हैं। ये भी तो मेरा विरसा है ना। मैंने अपना विरसा जमा किया, तो जो मेरा विरसा है तो उसमें तो विरसे को मैं शामिल करूँगा। मैं देखूँ राणा साहब को बात करना चाह रहे हैं, इसमें शामिल करना चाह रहे हैं। जी सर, क्या कहेंगे? सर, मुझे ये देख के बड़ी खुशी हो रही है कि मैं, चूँकि आई एम आल्सो सन ऑफ मोटायर, और मेरे वाले साहब ने 3 जंगें लड़ी, सेकंड वर्ल्ड वार 65 और 71 में वो शहीद हुए। तो मैं ये अचानक ये नज़र पड़ी और मेरी आंखों में मुझे नमी आ गई है। हज रुपए का हो जाए या 100 रुपए का हो जाए, उम्रा 5 रुपए का हो जाए या 5000 का हो जाए, एक दुआ है, चंद बार पढ़ ले, बार बार पढ़ ले, किसी लम्हे पढ़ ले। और दुआ क्या है? एक इस दुआ के अंदर मिन्नत है, और दूसरा अपना छोटापन ज़हर करना है, तवाज़ो ज़हर करना है। जो शख्स ये दुआ पढ़ेगा, फरमाया वो नेमत जिसके लिए पढ़ेगा अल्लाह उससे भी नहीं छीनेगा, अगर ज़्यादा पढ़ेगा अल्लाह उसकी नस्लों से भी नहीं छीनेगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने छोटे से बेटे के साथ काबा की तामीर की। आज भी आप काबा के अगर दाएं तरफ जाएं तो एक जबल काबा जगह है, आज भी है, उसको जबल काबा कहते हैं। यानी वहाँ से पत्थर उठाए थे, वहाँ से पत्थर उठाए थे, और वो पत्थर बेटा दे रहा था, और अल्लाह अपनी कुदरत कामला से, अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस पत्थर पे खड़े होकर तामीर कर रहे थे, अल्लाह उस पत्थर को ऊंचा कर रहा था। जितनी दीवार ऊंची जा रही थी, पत्थर भी ऊंचा जा रहा था। आज भी पाँव मकाम इब्राहिम के नाम पे मौजूद है। बड़ी मुशक्कत से काबा बनाया, पानी नहीं, मशीनें नहीं, कुछ भी नहीं, काबा की तामीर की अल्लाह के अमर से। जब ये तामीर कर ली ना, तो तामीर करने के बाद एक दुआ मांगी थी। आज वही दुआ है जिसकी बदौलत दुनिया खिंची खिंची
हज रुपए का हो जाए या 100 रुपए का हो जाए, उम्रा 5 रुपए का हो जाए या 5,000 का हो जाए, दुनिया खिंची खिंची वहां जा रही है और क़यामत तक जाएगी। वो एक दुआ है, वो एक दुआ है। रोजे के साथ इस दुआ को अपनी जिंदगी का साथी बनाएं। चंद बार पढ़ लें, बार बार पढ़ लें, किसी लम्हे पढ़ लें, किसी वक्त पढ़ लें इस दुआ को। और दुआ क्या है? रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ये दुआ है, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस। इस दुआ में दो चीजें हैं। मैं जो तफसीर की रो से ये बात रिवायत से और उसकी एहतियात से बता रहा हूं। एक, इस दुआ के अंदर मिन्नत है, मिन्नत है, और दूसरा अपना छोटापन ज़ाहिर करना है, तवाज़ु ज़ाहिर करना है। इंसान कोई बड़ी चीज़ हो तो उसको उस अंदाज से बताता है, और कोई छोटी चीज़ हो, कह ये मेरी मामूली सी दाल साग कबूल करें, दाल दलिया कबूल करें, और अगर बड़ी डिशें हों, जी मेरा खाना कबूल फरमाए। इसमें मिन्नत है। रब्बना तकब्बल मिन्ना, तेरी मेहरबानी है। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। कमाल चीज, कमाल चीज। यहां तक है इस दुआ के बारे में, और मेरे तजर्बात में मुसलसल है, जो शख्स ये दुआ पढ़ेगा, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, फरमाया वो नेमत जिसके लिए पढ़ेगा अल्लाह उससे भी नहीं छीनेगा, अगर ज्यादा पढ़ेगा अल्लाह उसकी नस्लों से भी नहीं छीनेगा। वो नेमत कोई भी है। रोजा नेमत है, फिर रोजा नेमत मिल गई, फिर उसकी कबूलियत का फिक्र, ये नेमत है कि इसका फिक्र, इसके अंदर फिक्र आ गई कि अल्लाह आप कबूल कर दे, ऐसा ना मेरे मुंह पे ना मार दिया जाए। ये दुआ पढ़ना, ये कुरान पाक की आयत है जो मैंने आपको बताई है, इस दुआ को पढ़ना। अफगानिस्तान का एक बादशाह गुजरा है, मुख्तसर बात बताऊंगा। तो उससे किसी ने पूछा कि आपके पास इतनी नेमतें, इतनी सादतें, इतना सब कुछ किस लिए है? पर मैं जब भी कोई छोटी सी छोटी नेमत भी मुझे मिली है तो मैंने ये दुआ पढ़ी है 3 बार, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, रब्बना तकब्बल। इस दुआ को पढ़ा, कहा अल्लाह पाक का निज़ाम है, फिर अल्लाह ने मुझे जब लौटाया है तो उससे बड़ी नेमत करके लौटाया है, बड़ी सादत करके लौटाया है, और उससे बड़ी नेमतें और सादतें मुझे अल्लाह ने फिर अता की हैं इस दुआ की बरकत से। ये दुआ असल में उसकी बारगाह में अमल को कबूल कराती है। अगर नेमत है तो उसको कबूल कराती है, और दुआ है उसको कबूल कराती है, उस करीम की अता है उसको कबूल कराती है। ये दुआ बहुत ताकतवर दुआ है। नस्लों तक ये सादतें, ये नेमतें, ये अताएं चलती रहेंगी इस दुआ की बरकत से। तो इसलिए कबूलियत का फिक्र बहुत ज़रूरी है, और उस कबूलियत के लिए ये दुआ वो है जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो चुकी है, बस हमने अपने लिए पढ़नी है, और इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी ये इबादत भी, हमारी ये सादत भी कबूल करेगा। तो आए मेरे साथ सारे पढ़ें, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, रब्बना तकब्बल मिन्ना